हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने अगले एपिसोड आपकी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स में। अभी तक, इससे पहले के एपिसोड तक हमने मैक्स वेबर तक हर कट टू कट सब टॉपिक कवर किया हुआ है और आज हम उस थिंकर पे पहुंचे हुए हैं जहां पे शायद ये सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कि टालकर पार्सन्स सर बहुत डिफिकल्ट है। I promise you in next 2 days, you would never have imagined कि Parsons इतना simple हो सकता है because Parson was a scholar who gave a very logical theory. If you catch the crux of a particular scholar, especially Parson here, पूरी theory fall करने लगती है एक साथ में and you don't have to read Parson again and again in order to recall Parsons. Many people who say Parson is very difficult, they themselves have not taught Parsons in such a manner because हमें जो डिफिकल्ट लगता है, हमको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए भी वो डिफिकल्ट होगा। तो मैं पर्सनली मानता हूं कि अगले 2 दिन के अंदर यू वुड चेंज योर आइडियोलॉजी एज फार एज टालकट पार्सन इज कंसर्न्ड। आज पेपर 1 चैप्टर 4 टालकट पार्सन्स का पहला टॉपिक करूंगा सोशल सिस्टम एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वुड कवर द पैटर्न वेरिएबल एज वेल। डे टू डे एग्जांपल से अप्लाई करके आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स एंड द थियरीज ऑफ टालकट पार्सन्स। एपिसोड नंबर है 33। पार्सन के अंदर सोशल सिस्टम थियरी हम क्या क्या देखेंगे। सोशल सिस्टम थियरी में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैले किस तरीके से पहले की थियरीज थी और फंक्शनल प्रीरेक्विजिट का कॉन्सेप्ट क्या और पार्सन ने क्या बोला। उसके बाद पार्सन्स का सोशल एक्शन अप्रोच क्या है, क्योंकि थोड़ा सोशल एक्शन जाना जरूरी होता है in order to understand the institutionalization of actions, how it forms to social systems। क्या थोड़ा सा डिफरेंस था पार्सन की अप्रोच में, यहाँ पे उनकी बोरोइंग्स कहाँ से रही और उस बोरो के बाद में उन्होंने सोशल सिस्टम कैसे बनाया और इस सोशल सिस्टम के अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं वो चीजें, और फाइनली विल कम टू कंट्रीब्यूशंस एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ टालकट पार्सन्स। तो शुरू करते हैं। अगर टालकट पार्सन से पहले देखें तो टालकट पार्सन्स की थियरी ऑफ सोशल सिस्टम डायरेक्टली came as a rejection to Karl Marx theory, where Marx advocated it is the economic systems which largely influences the every subsystems of a suprastructure. Those people who dominates in the economics, they can largely change any aspects of a society as such. Rather than talking about domination, Parson here was more concerned about that this technically is not right. As we see, Parson advocated that every subsystem carries the capacities to influence each other. It's not just the economic systems which largely has capacities to influence every other systems and not the reverse or vice versa. So Talcott Parson rejects Marx and advocates economic is definitely important, but economic system is at the best can give you an initial impetus to change, but it is ultimately which is the culture which determines the social change. And as a result, you will see in the coming few minutes that how Talcott Parson considered the cultural system as the supreme most system of all the systems. तो पार्सन बोलते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं इस दुनिया के अंदर सारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बाकी सब सिस्टम के अंदर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। कल्चर भी इकोनॉमिक को कर रहा है, इकोनॉमिक भी कल्चर को कर रहा है, रिलीजन भी कल्चर को कर रहा है या कल्चर भी रिलीजन को कर रहा है। There is a smooth operation which is largely present. So after demolishing the Marxian understanding, Talcott Parson gives before giving the theory he does look into certain other aspects. तो देखते हैं वो क्या। आगे बढ़े तो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट जानना जरूरी है before understanding social system. Talcott Parson, as you know it well, he was a functionalist. Talcott Parson being a functionalist, all the functionalists advocates that just like a human body, they believe in an organic analogy. Just like a human body has, basic primary requirements which it needs to fulfill, Talcott Parson also advocated that the society also needs to perform certain basic functions, and those basic functions which are must for a society to remain existence are called in sociological term as functional prerequisites. तो खाना पानी जैसे एक भोजन हो गया, अन्न हो गया, पानी हो गया या फिर हवा हो गई, बिना इसके कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वैसे सोसाइटी के लिए भी कुछ चीजें हैं जो अगर करते रहेंगे तभी सोसाइटी जिंदा रहेगी, नहीं तो सोसाइटी स्टैग्नेट हो जाएगी एंड द सोसाइटी वुड फॉल अपार्ट। वो फंक्शनल प्रीरेक्विजिट क्या है एक इंडिविजुअल के लिए, तो हम समझ सकते हैं इंसान के लिए कि ये 3 चीजें जरूरी है, बट सोसाइटी में क्या है। अकॉर्डिंग टू although there is a strong variation among the functionalist approach or functionalist scholars such as John Levy, Talcott Parsons or J.P. Murdoch, but as far as today's theory is concerned, we are only concerned about Talcott Parson. Parson के हिसाब से वो 4 फंक्शंस ऐसे जो हर सोसाइटी को परफॉर्म करने पड़ेंगे if the society
wants to remain intact, सोसाइटी अगर खत्म नहीं होना चाहती तो ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये 4 फंक्शन होते क्या हैं? A for adaptation, G for goal attainment, I for integration, L for latency। ये चारों फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। यूपीएससी की तैयारी से इसको कनेक्ट कर देता हूं। आप जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हो, पहले सिलेबस पढ़ते हो, प्रीवियस ये चीजें पढ़ते हो, आप अडॉप्ट करते हो। एक बार अडॉप्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको गोल सेट करने पड़ते हैं, नहीं तो तैयारी हेवे चली जाती है। गोल सेट करने के बाद में भी शेड्यूल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। शेड्यूल बनाना, गोल सेट कर लिया, शेड्यूल बनाने के साथ साथ आपको इंश्योर करना पड़ता है कि किस तरीके से आप उस शेड्यूल से इंटीग्रेटेड रहो, उसको फॉलो कर सको। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है अपना टाइम, अपना वक्त, अपने एस्पेक्ट्स, अपने डे टू डे एस्पेक्ट्स उस शेड्यूल से। और साथ ही साथ में आपको इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन कई बार होता यह है कि 2 दिन तो हमने 18 घंटे पढ़े, फिर 10 दिन ऑफ। आपको इंश्योर भी करना पड़ेगा कि वो रिप्रोड्यूस किया जा सके, जो इंटीग्रेशन है वो मेंटेन और बरकरार रह सके, उसे बोलते हैं लेटेंसी। तो इतना सिंपल है यार पर्सन। प्रॉब्लम ये है कि पहले ही डर बैठ जाता है, या फिर इनफैक्ट डर बिठा दिया गया है। आज इसको खत्म करेंगे प्रॉपर तरीके से। अडेप्ट, सोसाइटी हैज टू अडॉप्ट, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। आई डू अंडरस्टैंड 10 मिनट में पूरी डेप्थ नहीं जा सकता, बट आई गिवन यू एन एसेंस। आई एम प्रीटी मच श्योर नाउ यू आर क्लियर अबाउट एज फार एज व्हाट आर द फंक्शनल प्रीरेक्विजिट। एवरी सोसाइटी वुड हैव टू लार्जली परफॉर्म दीज 4 फंक्शंस। अगर एक भी फंक्शन इसमें से मिस हो जाता है, सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंडिया ने अडॉप्ट किया। अगर इंडिया उस टाइम अडॉप्ट नहीं करता तो चांसेस है कि वी कुड हैव लार्जली फेस्ड मोर डिफिकल्टीज इन आवर सोसाइटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन, फेमीन आई, अडॉप्ट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। तो हर जगह हमने गोल सेट किए, हमने सोसाइटी को इंटीग्रेट किया, कैसे लेटेंसी मेंटेन की जा रही है कि वो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन चीजें मेंटेन हो। तो टालकट पार्सन ने यहां तक आपको बताया कि हर सोसाइटी को एजीआईएल करना पड़ेगा। तो पार्सन ने क्लियरली कर लिया, ये पॉइंट याद रखना। 4 फंक्शन उन्होंने बोले कि सोसाइटी को परफॉर्म करना है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। टालकट पार्सन ने सोशल एक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ए सोशल एक्शन के अंदर बताया कि सोशल एक्शन क्या होता है। मैक्स वेबर का एक्सपेंशन मान लो, मैक्स वेबर का ही एक्सपेंशन टालकट पार्सन है। टालकट पार्सन बोलते हैं किसी भी सोशल एक्शन को अगर तोड़ के देखोगे, 3 डायमेंशनल व्यू लोगे, तो उसके अंदर 3 चीजें मिलेगी। कुछ मोटिव्स होंगे इंडिविजुअल, कुछ सोसाइटियल वैल्यूज होंगे, और कुछ सर्कमस्टेंसेस जो उस टाइम पे ये एक्शंस लिए गए थे। All the 3 largely influences the social actions। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो आप सोशल एक्शन नहीं लोगे। तो कई बार क्या बोलते हैं कि उस सिचुएशन में जाएंगे तब सोचेंगे क्या करना है यार, तब करूंगा मैं ये। तो कई बार सिचुएशन नहीं है तो आप एक्शन नहीं लेते, और कई बार आपकी मोटिव ही नहीं है तो कुछ भी वैल्यू डजंट मैटर, यू डोंट टेक एन एक्शन। और कई बार मोटिव होता है, वैल्यू में प्रॉब्लम होती है, आप फिर एक्शन नहीं ले पाते हो, कंफ्यूज रहते हो। जैसे कई बार ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त आप कंफ्यूज रहे, मोटिव कुछ और था, वैल्यू कुछ और बोल रही है, ये ज्यादा रेशियो बढ़िया है, ये ज्यादा ट्रेंड बढ़िया है। तीनों चीजें लाइन पे बैठती है तब जाके सोशल एक्शन होता है। अब टालकट पार्सन ने बोला कि जब ये एक सोसाइटी के लेवल पे, फंक्शनलिस्ट है तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब सोसाइटी के लेवल पे जब मेजरली लोग एक्शन ले रहे होते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, और मेजॉरिटी एक्शन से एक सिस्टम बनता है, सोशल सिस्टम। इस सोशल सिस्टम को स्ट्रक्चर ऑफ ए सोशल एक्शन के अंदर उन्होंने बोला कि सोसाइटी में 3 सिस्टम्स होते हैं, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम। ध्यान रखना, ये 3 सिस्टम अलग है, सोशल सिस्टम थियरी अलग है। इधर उन्होंने 3 सिस्टम्स बताए क्योंकि 3 टाइप के सोशल एक्शंस बताए थे उन्होंने, और बोलते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब कुछ वक्त बीतता है, फिर टालकट पार्सन सोशल सिस्टम की थियरी लिखते हैं। सोशल सिस्टम की थियरी लिखते वक्त उन्होंने क्या बोला, एवरी सोसाइटी हैज टू प्ले 4 फंक्शंस। अब कंफ्यूजन ये आ रहा है कि पहले की थियरी में उसने उन्हें 3 सिस्टम्स दिए, बाद में सोशल सिस्टम में 4 फंक्शन दिए। इसका मतलब फंक्शनिस्ट ये तो मानते हैं कि भैया एक ही सिस्टम 2 फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करेगा, अपना अलोकेटेड फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब चौथे सिस्टम की खोज शुरू करते हैं टालकट पार्सन्स, और वो मलिनोवस्की की बायोलॉजिकल नीड थियरी पढ़ते हैं और वहां से बोरो करते हैं चौथा सिस्टम, जिसको वो बोलते हैं ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम इन हिज सोशल सिस्टम थियरी। तो टालकट पार्सन खुद अपनी सोशल एक्शन थियरी के सिस्टम्स को रिजेक्ट करते हैं, एंड ही शोज इन हिज सोशल सिस्टम थियरी दैट सिंस सोसाइटी हैज 4 फंक्शंस, दीज 4 फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय 4 डिफरेंट सबसिस्टम्स। तो अब यहां से शुरू होती है सोशल एक्शन थियरी। एजीआईएल हर सोसाइटी को करना पड़ेगा। अब ये 4 फंक्शंस 4 सिस्टम्स ही करेंगे, एक सिस्टम के 4 सब पार्ट। आपके हाथ का रोल अलग है, आपकी आंखों का रोल अलग है, आपके नाक का और आपके कान का रोल अलग होता है। तो ये 4 सिस्टम बोलते हैं
ये चार फंक्शन चार सब सिस्टम परफॉर्म करेंगे। अब उनको अलोकेट करते हैं वो। A फॉर अडेप्टेशन फॉर ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम जो मालिनोव्स्की से बोरो किया, G इज फॉर पर्सनालिटी सिस्टम, I इज फॉर सोशल सिस्टम एंड L इज फॉर कल्चरल सिस्टम। तो टालकट पर्सन ने यहां तक पूरा का पूरा सोशल सिस्टम बना लिया। दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज सोशल सिस्टम, विच शोज दैट अ सोशल सिस्टम, और सोशल सिस्टम किसे बोलते हैं? सोसाइटी को। तो यहां तक पर्सन ने बोला कि कैसे सोसाइटी बहुत सारे सब सिस्टम से बनती है और हर सिस्टम अपना अलोकेटेड रोल परफॉर्म करेगा। तो यहां तक फंक्शनलिज्म परफेक्टली फिट होता चले जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं टालकट पर्सन और देते हैं इसी सोशल सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट हायरार्की ऑफ कंट्रोल। टालकट पार्सन्स बोलते हैं कि हर सब सिस्टम जो है कहीं ना कहीं एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल से काम करता है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है साइबरनेटिक कंट्रोल। व्हाट डज दैट मीन? कि ऊपर वाला सिस्टम हर नीचे वाले सिस्टम को कंट्रोल करेगा। तो दिस विल कंट्रोल दिस विल कंट्रोल दिस एंड दिस वुड कंट्रोल दिस। और बाहर से क्या होता है? थॉट एनर्जीज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, नीचे से वो इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट जाती है, ऊपर वाला उसे नए एब्सोल्युटली रिजेक्ट करता है, नए एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करता है और मॉडिफिकेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल सोसाइटी से डिमांड आई कि फार्म लॉ नहीं चलेंगे, तो गवर्नमेंट तक अपील गई, गवर्नमेंट ने फिर लॉ को चेंज किया, लॉ ने फिर कल्चर को। तो हम क्या देखते हैं? नीचे से अपील आती है कि अबॉर्शन लॉस को चेंज करो, ऊपर तक जाता है कल्चरल सिस्टम, ऊपर तक फाइनली बोलता है कि नहीं एब्सोल्युटली तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मॉडिफाई कर देते हैं, 24 वीक कर दो, ये मॉडिफाई कर देते हैं, ये परमिशन कर दो। तो टालकट पर्सन इन इज थियरी ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल शोज दैट दीज फोर subsystems present in a social systems largely are integrated so well because of the system of hierarchy of control, where every top level controls the immediate bottom level, and this ensures the smoothness present in these societies. अब ये इतना परफेक्टली कैसे कंट्रोल हो सकता है सर? इतना परफेक्शन कैसे हो सकता है सोसाइटी में? तो पार्सन बोलते हैं दिस हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज एंश्योर्ड थ्रू टू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। कि हर सिस्टम इतना सोशलाइज होता है कि कहीं ना कहीं दे विल नेवर ट्राई टू टेक अवे द फंक्शंस ऑफ अदर्स। तो फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होगी कि यू वुड नॉट लार्जली बी एबल, यू विल नॉट बी क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट्स एंड नॉट ट्राई टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स। फॉर एग्जांपल कि पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्शियस होते हैं कि वो जुडिशरी का फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे। जस्ट एक जनरल एग्जांपल दिया है। इसके नीचे भी टालकट पर्सन ने सोशल सोशलाइजेशन, पर्सनल सोशलाइजेशन, कल्चरल सोशलाइजेशन की बात की है। बट राइट नाउ दिस इज सफिशिएंट कि दीज सिस्टम्स आर सोशलाइज सो वेल दैट दे विल नेवर ट्राई टू इंटरफियर इन द फंक्शंस ऑफ अदर्स। कई बार ये सोशलाइजेशन फेल हो सकता है, जैसे हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर। उस टाइम टालकट पर्सन बोलता है फिर सोशल कंट्रोल प्रेजेंट होता है इस सिस्टम के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर। वो सोशल कंट्रोल के बेसिस पे फिर बिहेवियर कंट्रोल करने लगता है। अब ये सोशल कंट्रोल के अंदर भी टालकट पर्सन ने 3 फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल बोले: इनफॉर्मल कंट्रोल, फॉर्मल कंट्रोल, कोअर्सिव कंट्रोल। पहले आपको वार्निंग दी जाएगी, देखो हम वार्निंग देते हैं आगे मत बढ़ना, फिर भी नहीं माने, आगे बढ़े, पकड़ के पुलिस में जेल में डाल दिया, फिर भी नहीं माने तो हैंग। कोअर्सिव कंट्रोल, तो बच्चे में क्या होता है? बेटा जिद नहीं करना है, आंखें दिखाई, थोड़े टाइम के बाद में आंखें दिखाने से भी नहीं माना, रूम में बंद कर दिया, फिर भी नहीं हुआ तो छड़ी, 3 इडियट्स वाली। कोअर्सिव कंट्रोल, अब समराइज कर रहा हूं। पर्सन लार्जली एडवोकेटेड 4 फंक्शंस होता है, हर सोसाइटी को परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। ये 4 फंक्शंस 4 सब सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के। इन चारों में इतनी गांठ बांट होती है कि दे आर ऑपरेटिंग इन सो स्मूथ मैनर बिकॉज सोशलाइज्ड होता है सिस्टम। लोग यहाँ पे जानकार होते हैं कि क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। और कई बार अगर वो जानकार नहीं होते हैं, अगर सोशलाइजेशन में कुछ वीकनेस रह जाती है, तो सोशल कंट्रोल इतना स्ट्रांग है कि वो इंश्योर कराता है कि आप अपने काम से काम रखो। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंश्योर कराता है कि जुडिशरी साहब आप ये करोगे, पॉलिटिकल साहब आप ये करोगे और एग्जीक्यूटिव साहब आप ये करोगे। So once this hierarchy of control is explained, you now know very well that how this equilibrium is completely maintained in the Parsonian theory, जो आप कई बार वर्ड पढ़ते हो, moving equilibrium कैसे मेंटेन होता है इस hierarchy of control से। तो पार्सन ने यहां तक अपनी सोशल सिस्टम थियरी को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है एंड आपको समझा दिया दैट हाउ सोसाइटी इज द लार्जेस्ट सोशल सिस्टम मेड अप ऑफ 4 subsystems and these 4 subsystems plays the allocated functions and therefore ensures that the society stays intact। कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं ताकि इंश्योर किया जा सके ये चारों फंक्शंस अपने अपने फंक्शंस और सिस्टम्स के साथ मैच हो रहे हैं।
अब पार्सन को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला जब पार्सन की थियरी, तो कुछ लोग खड़े हो गए, बोले कि भाई साहब ये कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो यार, कौन सा ऑर्गेनिज्मिक, कौन सा पर्सनालिटी सिस्टम्स, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट। तो पार्सन बोले डोंट वरी, आई एम टालकड पार्सन्स, एस लगाते हैं नाम के आगे। तो वो बताते हैं कि देखो मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। ये जो 4 सिस्टम है ना, वो सोसाइटी में किस फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं वो इधर दिखेगा। कल्चरल सिस्टम रिलीजन और फैमिली, सोशल सिस्टम लॉ, पर्सनालिटी सिस्टम गवर्नमेंट और ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम इकोनॉमिक्स। बोला ऐसा क्यों? बोलता है कि अडेप्टेशन फंक्शंस इकोनॉमिक्स से होता है, गोल अटेनमेंट फंक्शन गवर्नमेंट सेट करती है सोसाइटी के गोल, सोशल सिस्टम वाला फंक्शन जो है इंटीग्रेशन लॉ से इंटीग्रेट होता है, क्योंकि लॉ एक कॉमन तरीका निकालता है जो सबको अबाइड करेंगे, तो इंटीग्रेट रहता है कि भैया ट्रैफिक सिग्नल हम तोड़ेंगे नहीं, बिकॉज सबको इसी तरीके से एक्ट करेंगे। लाल का मतलब रुको, येलो का मतलब देखो और ग्रीन का मतलब चल दो। और लेटेंसी कौन इंश्योर करता है? रिलीजन और फैमिली। फैमिली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पॉपुलेशन रखती है और साथ ही साथ में रिलीजन और फैमिली सोशलाइज करती है। जो वैल्यूज है वो नेशनलिस्ट की वैल्यूज या फिर वो कल्चर की वैल्यूज, हमारी संस्कृति की वैल्यूज, ये सारी चीजें कौन दे रहा है हमारे दिमाग के अंदर? रिलीजन ट्रांसफर करती है, फैमिली ट्रांसफर करती है, तो वो रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो अब सामने वाले को समझ में, अच्छा पार्सन बहुत जबरदस्त थियरी है सर, 4 सब सिस्टम्स मतलब ये है 4 सब सिस्टम्स, और ये 4 फंक्शंस जो है AGIL ये लोग परफॉर्म करते हैं इन पार्सन्स थियरी। अब पार्सन्स की थियरी पे तालियां बजाई लोगों ने, सर बहुत बढ़िया थियरी दी है। अब पार्सन बोलते हैं नहीं नहीं मेरी सिर्फ थियरी नहीं है, मैं पार्सन्स हूं, सिर्फ सोसाइटी एक्सप्लेन नहीं करेगी, मेरी थियरी ऐसी है दैट यू कैन यूज माई थियरी टू अंडरस्टैंड एवरी सब सिस्टम्स प्रेजेंट इन दी सोसाइटी। सामने वाले पूछते हैं मतलब क्या है सर? बोला कि ये AGIL है ना, सिर्फ सोसाइटी पे लागू नहीं होता है, एक यूनिवर्सिटी भी करेगी, एक कॉलेज भी करेगा, एक स्टडी IQ भी करेगी, एक इंडिविजुअल भी करेगा, हर कोई करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया था UPSC की तैयारी में भी AGIL होता है। Then Parson gives his sectorization approach. So when he equates it with the respective प्रेजेंट सिस्टम्स दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस थियरी। तो शॉर्ट नोट आए तो याद रखना कौन सा पार्ट पूछ रहा है सोशल सिस्टम का। इसको वो बोलते हैं माय थियरी इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू द एंटायर सोसाइटी, रादर देन माय थियरी कैरीज द कैपेसिटीज टू एक्सप्लेन एवरी सब सिस्टम्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेक्टोराइजेशन अप्रोच, वेयर Parson used the example of universities in order to highlight how even a university plays the functions of AGIL। और अगर कोई AGIL परफॉर्म कर रहा है तो ये चारों सिस्टम बनने स्वाभाविक है। तो Parson grandly explains the entire society and also explains every सब सिस्टम में भी ये AGIL होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी में भी AGIL है, फैमिली में भी AGIL है, मेरे इंडिविजुअल बिहेवियर में भी AGIL है। अब क्वेश्चन जब ये थियरी की आई तो पार्सन ने किताब लिखी हु रीड्स स्पेंसर्स, और फाइनली पार्सन के बाद में लिखी गया एक किताब हु रीड्स पार्सन्स। द सोशल सिस्टम थियरी वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स, स्पेसिफिकली द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक केम फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, who advocated that the Parson theory is a veiled status quoist, that the Parson, by giving a theory of social change within the social system through moving equilibrium, rather than explaining social change, is more focusing on explaining how the status is maintained in societies. Similarly, R.K. Merton ने स्टेराइल बोला, डेविड लॉकवुड ने इसको बोला कि किस तरीके से एक स्टेटस कोइस्ट अप्रोच रखता है, कैसे नॉर्मेटिव ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करता है, एंड ऑल्सो जॉन रेक्स एंड रैल्फ डेरेंड्रॉफ ऑल्सो कॉल्ड इट इज अ टोटोलॉजिकल, के घूम घूम के एक ही बात पे आ जा रहे हैं कि ऑर्डर कैसे मेंटेन रखा जाता है। इफ दिस इज द वे यू वांट टू लर्न पर्सन, देन दिस शुड बी कनेक्टेड विथ एवरी डॉट। अब क्वेश्चन आता है कि रेलेवेंस क्या होता है। रेलेवेंस टालकड पार्सन के थियरी को देखो तो ऑल्दो द पार्सोनियन थियरी ऑफ सोशल सिस्टम हैज बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड, बट इट्स रेलेवेंस लाइज इन द फैक्ट दैट many of the contemporary challenges of the world can be understood on the basis of AGIL approach. Whether we accept it or not, almost all of us largely performs the functions of AGIL. So his theory may not be completely true, but at the same time, his relevance definitely exists, if not in understanding the entire systems or actions, but definitely in understanding certain systems and certain actions. अगर